ایک دفعہ کا ذکر ہے، ملک یمن میں ایک دولت مند آدمی رہتا تھا۔ اس کا نام تھا خواجہ بشیر۔ خواجہ بشیر نہایت عقل مند، پڑھا لکھا اور خوش اخلاق تھا۔ آہستہ آہستہ اس کا آنا جانا بادشاہ کے دربار میں ہو گیا اور بادشاہ بھی اس کو پسند کرنے لگا، کیونکہ وہ ہمیشہ بادشاہ کو اچھی اچھی باتیں بتایا کرتا اور رعایا کی خوشحالی اور بہتری کی تدبیریں سمجھایا کرتا تھا۔ رفتہ رفتہ بادشاہ کو خواجہ بشیر پر اتنا بھروسہ ہو گیا کہ کسی امیر و وزیر پر اتنا بھروسہ نہ تھا۔ بادشاہ کو جب بھی کوئی مشکل درپیش ہوتی، وہ سب سے پہلے خواجہ بشیر سے مشورہ کرتا۔ ہمیشہ ہی بادشاہ نے محسوس کیا کہ خواجہ کا مشورہ بہت کارآمد ہوتا ہے۔ بادشاہ نے محل کے پہرے داروں، سپاہیوں اور غلاموں کو حکم دے رکھا تھا کہ خواجہ بشیر جب چاہے شاہی محل میں آ سکتا ہے، اسے بالکل نہ روکا جائے۔ یہ صورتحال بادشاہ کے وزیر کو ناگوار گزرتی تھی۔ بادشاہ کا وزیر ایک مکار اور کینہ پرور شخص تھا۔ اس نے سوچا کہ کسی طرح بادشاہ کے دل میں خواجہ بشیر کے خلاف نفرت پیدا کرنی چاہیے۔ ایک دن جب بادشاہ اکیلا تھا، مکار وزیر اس کے پاس گیا اور اس سے کہا، یہ غلام بہت دن سے ایک خاص معاملے میں پریشان ہے اور حضور سے اسی سلسلے میں کچھ عرض کرنے کا خواہش مند ہے۔ بادشاہ نے کہا، اجازت ہے۔ مکار وزیر نے کہا، عالیجا، دو باتیں ایسی ہیں جو سلطنت کے لیے خرابی کا باعث بن سکتی ہیں اور ان سے خود حضور کا تخت و تاج بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ حضور، پہلی بات یہ ہے کہ جو لوگ واقعی عزت اور احترام کے حقدار ہوں، انہیں وہ عزت نہ دی جائے اور ان کا احترام نہ کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ ادنا درجے کے ہوں اور اس قابل نہ ہو کہ انہیں بادشاہ منہ لگائے، ان لوگوں کو نچلے درجے سے اٹھا کر اوپر پہنچا دیا جائے۔ بادشاہ انہیں اپنے قریب بٹھانے لگے اور ہر معاملے میں انہی سے مشورہ کرنے لگے۔ یہ لوگ چونکہ ادنا ذہن کے ہوتے ہیں، اس لیے ان سے کسی اچھے مشورے کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ بادشاہ نے پریشان ہو کر کہا، ہم سمجھے نہیں، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ وزیر نے کہا، حضور، گستاخی معاف، میرا اشارہ خواجہ بشیر کی طرف ہے، جسے حضور نے خواہ مخواہ عزت دار بنا دیا ہے، اور ہر معاملے میں جب تک خواجہ بشیر آپ کو مشورہ نہ دے، آپ اس پر عمل نہیں فرماتے۔ شاید جہاں پر آپ کو معلوم نہیں کہ یہ شخص بہت چالاک، مکار اور دھوکے باز ہے۔ آپ تو خود سوچ سکتے ہیں کہ خواجہ بشیر جیسا بدنام آدمی آپ کا مصاحب ہو تو رعایا پر کتنا برا اثر پڑ سکتا ہے۔ بادشاہ نے بڑے غور سے وزیر کی یہ تقریر سنی اور پھر کہا، یہ تم کیا کہتے ہو؟ کیا ہم اتنی عقل بھی نہیں رکھتے کہ اچھے برے اور ادنا و اعلیٰ آدمی میں تمیز کر سکیں؟ جہاں تک ہم نے جانچا اور پرکھا ہے، خواجہ بشیر نہایت نیک، عقل مند اور دیانتدار شخص ہے اور ہمیں اس پر پورا بھروسہ ہے۔ آج تک اس نے جتنے بھی مشورے ہمیں دیے ہیں وہ سب درست اور مفید ثابت ہوئے۔ ہم نے کئی بار اس کی آزمائش کی ہے، ہر دفعہ اسے کھرا اور سچا انسان پایا ہے۔ تم نے اس کے خلاف جو الزامات لگائے ہیں، اب تمہارا فرض ہے کہ انہیں صحیح ثابت کرو، ورنہ ہم تمہیں ایسی عبرتناک سزا دیں گے کہ ہمیشہ یاد رکھو گے۔ یہ سنتے ہی وزیر کا خون خشک ہو گیا۔ دہشت سے مکار وزیر کے چہرے کا رنگ ہلدی کی طرح پیلا پڑ گیا۔ فوراً جھک کر بادشاہ کے قدموں کو بوسہ دیا اور ساتھ سلام کر کے رخصت ہوا۔ مکار وزیر ہانپتا کانپتا اپنے مکان پر پہنچا کہ خواجہ بشیر نے بادشاہ پر ایسا جادو کر رکھا ہے کہ اس کے خلاف بادشاہ کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اب اگر میں خواجہ بشیر کے بارے میں یہ الزام ثابت نہ کر سکا تو بادشاہ مجھے جیتا نہ چھوڑے گا۔ جو وزیر اس معاملے پر غور کرتا تو اسے اپنی ہی جان کے لالے پڑتے نظر آتے۔ اب اس نے دماغ لڑانا شروع کیا کہ وہ کون سی تدبیر ہو سکتی ہے جس کے ذریعے خواجہ بشیر کو بادشاہ کی نگاہوں سے گرایا جائے۔ سوچتے سوچتے شیطان نے آخر کار مکار وزیر کے کان میں ایک تدبیر پھونک ہی دی۔ اس شہر میں 70-80 برس کی ایک بڑھیا رہتی تھی، مکاری اور چالاکی میں لاجواب، اس کے کاٹے کا منتر ہی نہ تھا۔ وزیر نے اپنا ایک آدمی بھیج کر اس پھپا کٹنی کو بلایا۔ وہ فوراً حاضر ہوئی اور وزیر کو لاکھوں دعائیں دے کر بولی، سرکار، آج تو میری قسمت ہی جاگ گئی۔ حضور نے مجھ غریب بڑھیا کو کیوں کر یاد فرمایا؟ کیا کوئی پریشانی آپ کے دشمنوں پر آن پڑی ہے؟ وزیر نے کہا، ہاں اماں جان، کچھ ایسی ہی بات ہے۔ بادشاہ کا ایک مصاحب خواجہ بشیر میری جان کا دشمن ہوا ہے، اسے نیچا دکھانے کے لیے فکر مند ہو۔ میں نے بادشاہ سے کہا کہ یہ شخص بہت گھٹیا درجے کا ہے،
मगर बादशाह ने मेरी एक न सुनी और कहने लगा, अगर तुमने अपने इल्जामात का सबूत पेश न किया तो तुम्हें इबरतनाक सजा दूंगा। अब अम्मा जान, मेरी इज्जत व आबरू और जानो माल सब तुम्हारे हाथ में है। बुढ़िया ने मकार वजीर से कहा, ए हजूर, मेरी जान आपके कदमों पर निसार, कोई एक तदबीर कहिए तो हजारों तदबीरों से ख्वाजा बशीर को बदनाम करूं। अब आप इत्मीनान से अपने महल में आराम फरमाइए और बाकी काम मुझ पर छोड़ दीजिए। चालाक बुढ़िया ने अगले दिन फटे पुराने चीथड़े बदन पर लटकाए और लाठी टेकती आहिस्ता आहिस्ता ख्वाजा बशीर के मकान पर पहुंची। मकान के अंदर घुसने का इरादा किया तो दरबान ने डांट कर रोका। और बुढ़िया, कौन है तू और किधर जाती है? बुढ़िया ने दरबान की तरफ नफरत भरी नजरों से देखा और चीख कर बोली, देखता नहीं, अब ख्वाजा बशीर की बेगम से मुलाकात के लिए जा रहे हैं, तो हमें रोकने वाला कौन है? लाठी जमीन पर फेंक दी और खुद ज़िबा किए हुए मुर्गे की तरह तड़पने लगी। साथ साथ भयानक आवाज में चिल्लाती जाती थी, अरे लोगों, गजब खुदा का, ये 2 टके का गुलाम मुझ गरीब बुढ़िया को मार रहा है। बुढ़िया का शोर सुनकर बहुत से राहगीर जमा हो गए और सब ने बेचारे दरबान पर लान तान की कि तुम्हें शर्म नहीं आती इस गरीब बुढ़िया पर हाथ उठाते हुए। दरबान हक्का बक्का अपनी जगह खड़ा बुढ़िया को देख रहा था। उसने कस्में खा खा कर लोगों को यकीन दिलाने की कोशिश की कि बुढ़िया मक्कर कर रही है, झूठ बोल रही है, मैंने इसे मारना तो कुजा, उंगली नहीं लगाई, लेकिन किसी ने बेचारे दरबान की ना सुनी। आखिर इस हंगामे की खबर ख्वाजा बशीर की बीवी को भी हुई। उसने जल्दी से 2-3 कनीज़ों को दरवाजे पर भेजा और हुक्म दिया कि अभी इसी वक्त इस बुढ़िया को हमारे पास इज्जत व आबरू से लाओ। कनीज़ों ने आनन फानन डंडा डोली करके मकार कुटनी को बेगम की खिदमत में पहुंचा दिया। उसने बुढ़िया को आंसू बहाते और फटे पुराने कपड़ों में लिपटे हुए देखा तो बहुत तरस आया। कहने लगी, बड़ी भी, मैं माफ़ी चाहती हूँ कि दरबान ने आपसे गुस्ताखी की, फरमाइए कैसे आना हुआ? बुढ़िया ने कहा, ऐ बेटी, अल्लाह तुझे सलामत रखे। मुद्दत से ख्वाजा बशीर का नाम सुनते आ रहे हैं कि बड़ा सही है। बेटी, मैं एक मुसीबत ज़दा औरत हूँ, छोटे छोटे बच्चों का साथ है और कमाने वाला कोई नहीं। सोचा था कि आज ख्वाजा बशीर के पास जाऊं और उससे मदद की दरख्वास्त करूं, लेकिन क्या खबर थी कि रईसों ने ऐसे ऐसे कुत्ते पाल रखे हैं जो गरीबों को काट खाने दौड़ते हैं। बेटी, अब तुमसे क्या कहूं, कहते हुए भी शर्म आती है। कभी हम भी रुपए पैसे वाले थे, मेरा शौहर लाखों में खेलता था, जिंदगी बड़े ऐशो आराम में गुजरती थी। नागहां एक दिन मेरा शौहर घोड़ा गाड़ी के नीचे आनकर कुचला गया। उसके बाद सारी जायदाद और मालो दौलत गैरों ने धोखे दे देकर हथिया ली और हमें कोरी कोरी को मोहताज कर दिया। इतनी दास्तान सुनाकर बुढ़िया ज़ारों की तरह रोने लगी। ख्वाजा बशीर की बीवी इतनी नेक और खुदा तरस औरत थी कि बुढ़िया की दास्तान सुनकर वो भी आंसू बहाने लगी। आखिर बेगम ने कहा, बड़ी अम्मा सब्र करो, खुदा जो करता है बेहतरी करता है। इस वक्त मेरा शौहर घर में मौजूद नहीं, वरना उसकी इजाज़त से मैं तुम्हें इतने पैसे और कपड़े देती कि तमाम ज़िंदगी तुम्हें किसी और के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत पेश ना आती। तुम यहाँ इत्मीनान से बैठो, मेरा शौहर बादशाह से मिलने गया है, शायद अभी वापस आ जाए। चालाक बुढ़िया सारा दिन उस मकान में रही। इत्तफाक से ख्वाजा बशीर शाम तक वापस ना आया। जब अंधेरा तेजी से फैलने लगा तो बुढ़िया ने कहा, ए बेटी, तुम्हारा मियाँ तो अभी तक शाही महल से वापस नहीं आया, उधर मेरे बच्चे भूख प्यास से बिलक रहे होंगे, अब मुझे इजाज़त दो, फिर कभी आऊँगी। ये सुनकर ख्वाजा बशीर की बीवी ने एक बहुत कीमती चादर जो बादशाह ने ख्वाजा बशीर को तोहफे में दी थी बुढ़िया को दे दी और कहा, बड़ी अम्मा, इस वक्त तो ये चादर ले जाओ, इसके किनारे पर कीमती मोती टके हैं, अगर तुम इसे बाजार में बेच दो तो 1000-2000 रुपये आसानी से मिल जाएंगे। तुम कल सुबह ज़रूर आना, उस वक्त मेरा शौहर मकान पर होगा। बुढ़िया ने वो कीमती चादर लपेटी और बेगम को सैकड़ों दुआएं देती हुई रुखसत हुई। अपनी कामयाबी पर वो बेहद खुश थी। उसका ख्याल था कि जब वो ख्वाजा बशीर की ये चादर ले जाकर वज़ीर को दिखाएगी तो वो खुशी से उछल पड़ेगा और अपने वादे के मुताबिक वो उससे मुंह मांगा इनाम हासिल कर लेगी। बुढ़िया सीधी वज़ीर के महल में गई और चादर उसके आगे फेंकते हुए बोली, लीजिए हुजूर, आपके इकबाल से कामयाबी की सूरत पैदा हो गई। मैंने बड़ी कोशिश से ये चादर हासिल की है। वज़ीर ये सुनते ही खुशी से नाचने लगा और उसने वो चादर बगल में दबा बुढ़िया को दुआएं देकर परे हटाता हुआ अपने महल से निकला।
और शाही महल के जानिब रवाना हुआ। उसने शाही महल में पहुंचकर बादशाह को अपनी आमद की इत्तला कराई। बादशाह ने यह समझा कि शायद वजीर कोई ज़रूरी बात करने आया है, फौरन उसे बुला लिया। वजीर ने चादर बादशाह को दिखाते हुए कहा, जहाँपनाह, ये वही चादर है ना जो आपने ख्वाजा बशीर को अता की थी? बादशाह ने चादर को गौर से देखा और फिर बोला, हाँ हाँ, ये वही चादर है जो हमने ख्वाजा को खुश होकर अता की थी, लेकिन ये तुम्हारे पास कैसे आई? मक्कार वजीर बोला, हुजूर, ख्वाजा बशीर ने ये चादर अपनी बीवी को दे दी थी। वो उसे बाजार में औने पौने दामों बेच रही थी कि इत्तफाक से मेरी नज़र पड़ गई। मैं शाही तोहफे की तौहीन बर्दाश्त न कर सका और चादर लेकर हुजूर की खिदमत में हाजिर हो गया। बादशाह ये सुनकर हैरान रह गया। वजीर ने देखा कि तीर निशाने पर बैठा है, तो उसी वक्त बादशाह को सलाम करके रुखसत हो गया। बादशाह ने सोचा कि वजीर की बात सच निकली तो वाकई ख्वाजा बशीर बहुत घटिया आदमी है। वह उसके दिए हुए कीमती तोहफों के साथ ऐसा सलूक करता है। दूसरी तरफ उसे यह भी एहसास हुआ कि ख्वाजा बशीर इतना नीच नहीं हो सकता। गर्ज इसी सोच विचार में बादशाह को नींद आ गई। सुबह उठते ही उसने सबसे पहला काम यह किया कि ख्वाजा बशीर को बुलवाया। इतनी सुबह बादशाह ने उसे कभी तलब नहीं किया था। वो उस वक्त जिस हाल में था, भागम भाग बादशाह की खिदमत में पहुंचा। बादशाह ने वही चादर जो वजीर लाया था ख्वाजा की तरफ फेंकते हुए कहा, जरा गौर से पहचानो ये चादर किसकी है? ख्वाजा बशीर ने पहली नज़र में पहचान लिया कि यह कीमती चादर वही है जो बादशाह ने उसे दी थी, लेकिन वो हैरान था कि यह बादशाह के पास क्यों कर पहुंची। बादशाह गुस्से से चिल्लाया, हम आज तक तुम्हें निहायत शरीफ और अच्छा आदमी समझ रहे थे, लेकिन अब पता चला कि तुम्हारी असलियत क्या है। ये चादर जो हमने तुम्हें अता की तोहफे के तौर पर दी, तुम्हारी बीवी ने वजीर के हाथ बेच दी। बादशाह के मुंह से ये अल्फाज सुनकर ख्वाजा बशीर का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया, लेकिन वो बादशाह के सामने खड़ा था। उसे यकीन था कि यह सब वजीर की शरारत है और उसने बादशाह की नज़रों से उसको गिराने के लिए ये हरकत की है। ख्वाजा को अपनी बीवी के बारे में भी अच्छी तरह मालूम था कि वो एक लम्हे के लिए भी मकान से बाहर नहीं गई, फिर वो इस बकवास पर किस तरह यकीन कर लेता। उसने निहायत ठंडे लहजे में बादशाह को समझाने की कोशिश की, लेकिन बादशाह का पारा चढ़ चुका था। उसने ख्वाजा की किसी बात पर कान न धरा और उसी वक्त जल्लाद को तलब करके हुक्म दिया, ले जाओ इस कम असल और नीच जात को मेरे सामने से और फौरन कत्ल कर दो। तमाम दरबारी ये हुक्म सुनकर दम बखुद रह गए। उनमें अक्सर ऐसे थे जो ख्वाजा बशीर को अच्छी तरह जानते थे कि यह बड़ा ईमानदार और नेक आदमी है। जल्लाद ने ख्वाजा का बाजू पकड़ा और दरबार से बाहर ले गया। वो भी ख्वाजा बशीर का बड़ा एहतराम करता था। उसने ख्वाजा के कान में कहा, घबराइए मत, मैं आपको इतनी जल्दी कत्ल नहीं करूँगा। मुझे यकीन है कि बादशाह ने जल्दबाजी से काम लेकर आपके कत्ल का हुक्म दिया है। मैं अपने घर ले जाकर आपको छुपा दूंगा, फिर मौका देखकर बादशाह से आपकी जान बख्शी की दरख्वास्त की जाएगी। इधर तो बादशाह ने ख्वाजा को मौत की सज़ा सुनाई और उधर ख्वाजा के एक दोस्त ने यह खबर उसकी बीवी को पहुंचाई और सारा किस्सा भी कहा कि किस तरह वजीर ने उस पर शाही चादर बेचने का इल्ज़ाम लगाया। ख्वाजा की बीवी ने कहा, खुदा गवाह है कि वो चादर मैंने एक बेकस, बेआसरा और गरीब बुढ़िया को दी थी। ख्वाजा का दोस्त बेगम की हिम्मत और हौसले पर आफरीन कहता हुआ रुखसत हुआ। उसके जाने के बाद बेगम ने अपने चेहरे पर नकाब डाला और सीधी बादशाह के दरबार में पहुंची। उस वक्त वजीर भी वहां मौजूद था। बेगम ने जाते ही दुहाई दी, इंसाफ इंसाफ। बादशाह ने उसे देखकर कहा, ऐ औरत, बता तुझे किसने तकलीफ पहुंचाई, हम पूरा पूरा इंसाफ करेंगे। ख्वाजा की बीवी ने कहा, जहाँपनाह, आपके वजीर ने मुझे धोखा दिया है। मैं पिछले 15 बरस से आपके वजीर की बीवी हूँ। इसने वादा किया था कि वो हर साल मुझे खर्च के लिए 900 रुपये दिया करेगा, लेकिन इस धोखेबाज और झूठे शख्स ने आज तक मुझे एक ढेला भी नहीं दिया और मुझ पर नित नए जुल्म तोड़ता रहता है। मजबूर होकर आज मैं आपकी खिदमत में फरियाद लेकर हाजिर हुई हूँ। पिछली रात वजीर ने मुझे कत्ल करने की धमकी भी दी है। बादशाह ने वजीर से कहा, इस औरत ने जो इल्ज़ाम तुम पर लगाया है, तुम्हारे पास इसका क्या जवाब है? वजीर ने हाथ बांध कर अर्ज की, आलिजा, ये औरत झूठी है। मैं हजूर के सर की कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने इस औरत को आज से पहले कभी नहीं देखा। औरत ने चिल्ला कर कहा, हुजूर, वजीर ने आपके सर की कसम खाकर कहा है कि वो मुझे नहीं जानता और आज से पहले इसने मेरी शक्ल तक नहीं देखी। इसे हुक्म दीजिए कि जो कुछ इसने कहा है वो एक कागज पर लिख दे
ताकि बाद में मुकरने की गुंजाइश न रहे। यह कहकर औरत ने अपना नकाब उलट दिया और बोली, इस मक्कार वजीर से कहिए कि मेरी सूरत गौर से देख ले और लिख कर इनकार करे कि मैं इसकी बीवी नहीं हूँ और ये मुझे नहीं जानता। मक्कार वजीर ने उसी वक्त कागज पर यह इबारत लिख दी। जब ये तहरीर वजीर ने लिख दी तो औरत ने बादशाह से कहा, जहाँ पना, जैसा कि वजीर ने इकरार किया है कि वो मुझे नहीं जानता और ना इसने आज से पहले मेरी सूरत कभी देखी है, मैं अर्ज करती हूँ कि वजीर की ये दोनों बातें दुरुस्त हैं। बेशक मैं इस बदबख्त की बीवी नहीं। मैंने आपके सामने इसकी मक्कारी का पोल खोलने के लिए यह गलत बयानी की है। हुजूर, सच तो ये है कि मैं ख्वाजा बशीर की बीवी हूँ। इस मक्कार वजीर से पूछे कि इसने मुझ पर क्यों बहतान लगाया कि मैंने शाही चादर का तोहफा इसके हाथ बेचा था। जहाँ पना, हकीकत ये है कि वो चादर मैंने एक गरीब और बेआसरा बुढ़िया को दी थी। उससे किसी तरह वजीर ने हासिल कर ली और मुझे बदनाम करने का मौका तलाश किया। बादशाह ने कहर भरी निगाहों से मक्कार वजीर को घूरा। वजीर के बदन में काटो तो लहू नहीं। उसी वक्त रोता हुआ बादशाह के कदमों में गिरा और अपने कसूर की माफ़ी तलब की, लेकिन बादशाह ने ठोकर मारकर उसको परे हटा दिया और हुक्म दिया कि जल्लाद को बुलाया जाए। हबशी जल्लाद हाजिर हुआ। उसके हाथ में नंगी तलवार देखकर वजीर के रहे सहे होश भी उड़ गए। लपक कर ख्वाजा बशीर की बीवी के कदमों में गिरा और कहने लगा, ए मोहतरम खातून, खुदा के वास्ते बादशाह से सिफारिश कर कि मेरी जान बख्श दे। बेगम ने कहा, तूने वो हरकत की है कि उसकी सज़ा मौत से भी बढ़कर है। तूने मेरे प्यारे शौहर की हलाकत का सामान किया, लेकिन खुदा ने उसे बचा लिया और तुझे हलाकत के इस गड्ढे में गिराया जो तूने अपनी मकारी से मेरे शौहर के लिए खोदा था। अब ये बता कि वो शाही चादर तेरे पास क्यों कर पहुंची। वजीर ने कुटनी का हाल सुनाया। उसी वक्त प्यादे दौड़ते हुए गए और उस खबीस बुढ़िया की मशकें बांध के ले आए। बादशाह ने हुक्म दिया कि बुढ़िया को ज़मीन में आधा गाड़ कर इस बार खूनख्वार शिकारी कुत्ते छोड़ दिए जाए और वजीर को कत्ल करके इसकी लाश जंगल में फेंक दी जाए ताकि जंगल के जानवर इसे नोच नोच कर अपना पेट भर सकें। उसके बाद शाही जल्लाद ने ख्वाजा बशीर को बादशाह के सामने पेश किया और अर्ज़ की कि हुजूर, मैं जानता था कि ख्वाजा बेगुनाह है, इसलिए मैंने आपके हुक्म की तामील नहीं की। बादशाह ने खुश होकर जल्लाद को मोतियों की कीमती माला इनाम में दी और ख्वाजा बशीर को गले से लगा लिया। चंद रोज़ बाद बादशाह ने वज़ीर सल्तनत का दर्जा ख्वाजा बशीर को दिया और हासिद वज़ीर की तमाम जायदाद भी उसे अता कर दी।